एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ, कमलजीत शर्मा, अनीता शर्मा, गोल्डी शर्मा, अनु शर्मा, गीता शर्मा, मनिंदरजीत सिंह, जयदीप शर्मा, ओमकार शर्मा, हितेंद्रपाल, शिवम, बिलावल सिंह, बिस्मन कौर, मनप्रीत शर्मा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਗੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭੁੱਲਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਲਾਡ ਲੜਾਏ, ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਪਿਆਰ ਜਤਾਏ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਮਟਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਜੈਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
स्वर्गीय श्री भगवान दास जी शर्मा अब हमारे मध्य में नहीं है। अपनी हरी भरी फुलवारी बगीची जो उन्होंने अपने जीवन काल में लगाई थी, संपूर्ण जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के राम राम कह करके अपने इस शरीर को छोड़ दिया। वो दिवंगत आत्मा परमात्मा के चरणों में जाकर के विलीन हो गई। अस्सी साल का जीवन उन्होंने जिया और अंत समय में अपने गुरु जी का ध्यान करते हुए राम राम जप करके अपने तन को त्याग दिया। कोई जग में रहा न रहेगा, जाना एक रोज सबको पड़ेगा। जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म जग बेगाना, काल में एक रोज सबको खाना। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। इस जगत में जो भी आया है उसे एक दिन जाना पड़ता है। ये संसार रेल के बिल्ली की तरह है, उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। दादा का मकान बना पोता निगाहबान है, वो भी तो बेचारा चंद रोज का मेहमान है। दादे ने जाना है तो पोते ने आना है। जो पेड़ खड़ा है एक दिन पुराना होकर गिर जाता है, मकान भी पुराना हो जाता है तो वो ढह जाता है। वासान से जीर्णानि यथा विहाय। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन करते हुए कहा है, जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो आदमी उसे फेंक करके नया वस्त्र धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जब कर्म के अनुसार एक शरीर जीर्ण हो जाता है, उसमें से जीवात्मा निकल के कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा कभी मरता नहीं, उसका जन्म भी नहीं होता है। बचपन जवानी बुढ़ापा ये सब शरीर को ही मिलता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आना बार बार जाना ये शरीर का धर्म है। पंचभौतिक है, पृथ्वी आकाश वायु अग्नि और जल। जब आदमी चला जाता है तो तत्व में तत्व मिल जाता है और पिंजरा खाली करके जीवात्मा कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में चला जाता है। कोई जग में रहा न रहेगा, जाना एक रोज सबको पड़ेगा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ सभी को इस जगत छोड़ करके जाना पड़ता है। इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन जाना पड़ा है। अपने पीछे अपनी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला देवी जी को छोड़ के चले गए। गृहस्थ आश्रम में वृद्धावस्था में एक दूसरे की बड़ी आवश्यकता होती है। आज उनकी बड़ी जरूरत थी। जिये बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पति बिन नारी। रामचरितमानस में जैसे शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है, नदी तो है पर पानी नहीं है। इसी प्रकार से नारी का जीवन बिना पति के बेकार हो जाता है। गृहस्थ आश्रम के रथ रूपी दो चक्के होते हैं। इस समय बड़ी जरूरत होती है पति पत्नी को एक दूसरे की, लेकिन आज वो अकेली रह गई। साईं चले गए, एक मालिक चले गए, पति माने मालिक, एक रखवाला चला गया। बड़ा ही जीवन विलक्षण हो जाता है। अपने पुत्र श्री कमलजीत शर्मा और उनकी पत्नी अनीता शर्मा, छोटे बेटे से गोल्डी और पत्नी अनु शर्मा, बेटी गीता और उनके पति नरेंद्र जीत जी, ये कुल परिवार को छोड़ करके गए हैं। कोई लाइब्रेरी ऐसी छोड़ करके नहीं गए, राम राम कह करके अपने तन को त्याग दिया। ऐसी शख्सियत के माध्यम से वो सज्जनों, मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है।
इसे कोई टाल नहीं सकता। सभी को एक दिन जगत में जो आए हैं उन्हें जाना ही पड़ता है। विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी संसार में जाने के बाद प्रेरणाएं सदा जिंदा रहती हैं। ऐसे महान शख्सियत के मालिक थे और सामाजिक कार्यों में बड़ा ही हिस्सा लेते थे। इंसान के किए हुए कर्म साथ में जाते हैं। गरुड़ पुराण के माध्यम से धनाने भूमो पुष्पो गोष्ठे सखा शमशाने नारी गृह द्वारे देहे चित्तायाम परलोक मार्गे धर्मानुरागी गच्छन्ति जीवेक। ये धन, ये भूमि, ये मकान, ये दुकान, ये परिवार, सगे संबंधी सब यही मिलते हैं और यही बिछुड़ जाते हैं। जगत में जीव आया तो अकेला था। भगवान दास को उनके माता पिता ने नाम रखा था। वहां से तो कपड़े भी लेके नहीं आए थे। माता पिता ने कपड़े बदले, माता पिता ने नाम रखा। संग सखा सब तज गयो, कोई न निभयो साथ। नारी चले दवार तक, परिवार गलियां बाजार तक। मित्र बंधु चले मसान तक, परदेसी हंस गुजारिया। मत कर भरोसा देहीगा, इन्हें भस्म होना प्यारे। यहीं पर मिलते हैं, यहीं बिछुड़ते हैं। यही दिया, यही दिया। संसार में प्राणी अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। किसी कवि ने लिखा है, अरे दिल, अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम जग का झमेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम जग का झमेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का किस काम का ऊंचा महल तू बनाएगा। किस काम का ऊंचा महल बनाएगा। रथ हाथी पर चंद्रगी क्या तेरे काम आएगा। तेरे सफर में सवारी की खातिर ये कंधों में ठगली का तेरा रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम जग का झमेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। अर्धांगनी पड़ेगी तो केवल मकान तक। ये परिवार के लोग चले जाएंगे शमशान तक। बेटा हक निभाएगा अग्नि का दान। इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम जग का झमेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम जग का झमेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का, अरे मन, ये 2 दिन का। ये लॉकडाउन के कारण से और ये कोरोना काल की वजह से फिर भी मैं देख रहा हूँ इस परिवार का कितना सहचार है। शहर में कितना नाम है। गोल्डी जी ने और कमल जी ने अपनी आभा का निखार किया है। और ऐसे समय में जब सभी को प्रार्थना की गई है कि अपने घर से ही श्रद्धांजलि दें, फिर भी आप
कीमती वक्त निकाल करके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए पधारे, आभार व्यक्त किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मंत्री श्री भारत भूषण जी आंसू जी भी आए थे, और मयूर जी, बालकृष्ण जी, श्री सन्नी भल्ला जी जो काउंसलर हैं, पंकज जी काला जी जो उनके नजदीक रहते हैं, हरी सिंह जी बरार और महाराज सिंह तथा पूनम मल्होत्रा जी, राजेंद्र बसंत जी, बलजिंदर जी और नरेंद्र जी काला बिग फैमिली पधारे, श्री जसदेव सिंह जी जस्सा जी, जोनल कमिश्नर जी, उनकी तरफ से यह शोक संदेश है। गुरुप्रीत सिंह जी गोगी जी यहाँ पधारे हुए हैं, राजीव राजा जी और प्रवीण यहाँ पर संवेदना व्यक्त करते हैं। एडवोकेट विक्रम सिद्धू जी परिवार को ये सांत्वना देते हैं। दिवंगत आत्मा को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अब कमलजीत जी और गोल्डी जी से निवेदन करूंगा वो ग्रंथ पर रुमाला अर्पित करें। पटस्य पत्रस्य कृते जिन्होंने भोजन नहीं किया है वो भोजन अथवा चाय आदि लेकर के जाएं। आप सभी का बहुत